Good morning. Last time we discussed about chapter number 10, straight line, and we discussed example number 19. Today we discuss exercise 10.3 and chapter number 10, straight line. Chapter number 10, straight line, and exercise 10.3, and also we discussed last time question number 1. Today we discuss exercise 10.3 question number 2. Question number 2 में लिखा है reduce the following equation. Reduce the following equations into intercept form. And find their intercepts on the axis. Find their intercepts on axis. ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन के लिए आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसका इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट होगा एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट होगा वाई इंटरसेप्ट। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Here equation is 3x plus 2y minus 12 equal to 0. We know that what is the intercept form? हम लिखेंगे we know that सबसे पहले तो हम intercept form लिखेंगे। तो intercept form क्या है हमारे पास x upon a plus y upon b equal to 1 is the intercept form. ओके, तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3x plus 2y equal to क्या होगा 12 होगा। 3x plus 2y ये माइनस 12 दूसरे करेगा तो 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में ओनली 1 चाहिए। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड में 12 से सभी को ये इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे 3x by 12 plus 2y by 12 equal to 12 by 12. Okay, now 3 4s are 12, so x by 4, 2 6s are 12, so y by 6 equal to 12 by 12 is 1. Okay, now intercept form is x by 4 plus y by 6 equal to 1, or this is the intercept form x by 4 plus y by 6 equal to 1. उसके बाद find the intercept on axis. तो हमारा x intercept क्या है, x intercept a equal to 4, so 4 and b equal to, तो इसको लिखेंगे y intercept. ओके, तो y intercept b equal to कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना है कि we know that x upon a plus y upon b equal to 1 where a equal to x intercept and b equal to y intercept. So this is the intercept form. अब जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन को हम क्या करेंगे 3x plus 2y equal to 12 किया और 12 से सभी इक्वेशन को डिवाइड किया। तो 3x by 12 2y by 12 equal to 12 by 12, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए हमें 1 चाहिए। तो x by 4 plus y by 6 equal to 1 and this is the intercept form. उसके बाद 4 is what? So 4 is x intercept and 6 is y intercept. Okay, so question number 1 is complete. Next question number 2. Question number 2 is 4x minus 3y. 4x minus 3y is equal to 4x minus 3y is equal to 6. ओके, तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन को क्या करेंगे सभी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करेंगे।
लेकिन पहले हम लिखेंगे कि वी नो दैट intercept form is x upon a plus y upon b is equal to 1. Here a is x intercept and b is y intercept. So equation is 4x by 6 करेंगे minus 3y by क्या करेंगे 6 करेंगे equal to 1 हो जाएगा। यानी कि सभी इक्वेशन की ये जो पूरा इक्वेशन है वो इक्वेशन डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। ओके, सो आंसर क्या होगा? यहाँ पर 2 2 जा 4 into x, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 2 जा 6, ओके 3 2 जा 6 minus 3 1 जा 3 divided by 3 2 जा 6 equal to 1. Now 2 2 यहाँ से कट होगा, यहाँ से 3 3 कट होगा, so answer is 2x by 3 minus y by 2 is equal to 1. Now x is equal to what? So x is equal to 3 by 2, x equal to 3 by 2 लिख देंगे यहाँ पर। x equal क्या होगा 3 by 2 minus y equal by 2 equal to 1। जैसे कि यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2x by 3 हो जाएगा, यानी कि x by a minus y by b फॉर्म से हम लेंगे तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट भी हमें मिल जाएगा। So this is the intercept form x by 3 by 2 minus y by 2 equal to 1. So this is the intercept form and a is x intercept, तो हम लिखेंगे x intercept is a equal to 3 by 2 and y intercept is b equal to 2. ओके, सो y इंटरसेप्ट क्या होगा 2 और x इंटरसेप्ट हमारे पास मिल गया है a is equal to 3 by 2. ओके, सो question number 2 is complete. Next question number 3. Question number 3 is 3x plus 2y equal to 0. 3x plus 2y equal to 0. Okay, so हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे we know that intercept form is x upon a plus y upon b is equal to 1. Intercept form is x upon a plus y upon b is equal to 1. Now x यहाँ पर देखो 0 से डिवाइड करेंगे, यानी कि क्या होगा 1 लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 3x इक्वल टू, यानी कि 3x plus 2y minus 0 equal to 0 हो जाएगा। ओके, ऐसा लिख सकते हैं ना इक्वेशन को 3x plus 2y minus 0 equal to 0. Now 1 लाना है यहाँ, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर plus 1 को ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3x by x by 3 लिखेंगे, x by 3 plus y by 2 minus 0 equal to 0, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि x by 3 plus y by 2 minus 0, तो इक्वेशन एक बार देखिए 3x plus 2y 3x plus 2 equal to 0, not 2y, yes 3x plus 2 is equal to 0, so ये नहीं आएगा पूरा। ओके, so x intercept form is x upon a plus y upon b is equal to 1. तो 1 लाने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x, ऐसा लिख सकते हैं ना 3x equal to minus 2, 3x equal to minus 2, so x equal to what? So x equal to minus 2 by 3. तो यहाँ पर एक इंटरसेप्ट मिल रहा है minus 2 by 3, लेकिन y इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर y वाला कोई टर्म है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर एक इंटरसेप्ट मिल रहा है x equal to minus 2 by 3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x by minus 2 by 3 plus y by 0 is equal to 0. so इंटरसेप्ट फॉर्म भी लिखना है, ऐसा लिख सकते हैं x upon minus 2 by 3 plus y by 0 equal to 0. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज ऑलरेडी कंप्लीट, सो आप राइट नंबर।
Now, question number 3. Now, we discuss question number 3. Question number 3 is reduce the following equation. बात तो question समझ लीजिए. Reduce the following equation. Following equation into the normal form. Into normal form. नॉर्मल फॉर्म आगे लिखा है और फाइंड करना है फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओके एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करना है और आगे लिखा है एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड देयर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल भी फाइंड करना है फाइंड द एंगल एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओके इतना फाइंड करना है तो एंगल भी फाइंड करना है बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द नॉर्मल फॉर्म ओके दिए गए इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके बाद फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब p फाइंड करना है हमें ओरिजिन पॉइंट से एंड एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंगल भी फाइंड करना है एंगल मींस ओमेगा भी फाइंड करना है ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर वो हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले 1 नंबर में दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में x minus root 3y plus 8 equal to 0 तो हमें लिखना क्या है कि we know that our normal form is x cos omega plus y sin omega equal to x cos omega plus y sin omega equal to p we know that x cos omega plus y sin omega equal to p is the normal form तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि ओमेगा फाइंड करेंगे ओमेगा मींस व्हाट ओमेगा मींस एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर ओके एंड x एंड y को आएंगे उसके बाद p इज व्हाट सो p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओके सो we know that p equal to what's equal to c upon under root a square plus b square ओके तो p कैसे फाइंड होगा c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos ओमेगा कैसे फाइंड होगा तो cos ओमेगा मींस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसके बाद sin ओमेगा कैसे फाइंड होगा तो sin ओमेगा मींस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है सभी फार्मूला में a और b चाहिए तो a इज व्हाट सो x का कोएफिशिएंट होगा a एंड y का कोएफिशिएंट होगा b and c is constant term okay c is constant term so p is equal to क्या होगा constant term is 8 divided by under root a square plus b square is 1 whole square plus minus root 3 whole square okay so minus root 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 plus 1 4 हो जाएगा 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा divided by 8 so answer is 4 okay so perpendicular distance from the origin p equal to कितना होगा 4 होगा okay तो 4 हमें मिल गया p की वैल्यू 4 मिल गई उसके बाद cos omega means what so a upon under root a square upon a square plus b square so a is what so a is coefficient of x so coefficient of x 1 divided by under root a square plus b square means 1 whole square plus minus root 3 whole square so 1 by 2
60 डिग्री, therefore ओमेगा इक्वल टू 60। ओके, ओमेगा इक्वल टू कितना होगा 60 होगा। उसके बाद sin ओमेगा मींस व्हाट b, तो sin ओमेगा b यानी कि -√3, तो हम लिखेंगे -√3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर, सो -√3 by 2, तो -√3/2 sin में किसकी वैल्यू है, उसमें भी ओमेगा कितना है 60 है, लेकिन माइनस है, सो हम क्या लिखेंगे, एक माइनस आंसर आया, एक प्लस आंसर आया, तो एक माइनस और प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू 180 माइनस 60 लिख दो, यानी कि 120 हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू 180 माइनस 60 क्यों है सर, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस आंसर आ रहा है, एक प्लस आंसर आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। ओके, नाउ नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे, तो क्या होगा x cos 120 प्लस y sin 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p means what, p means 1। ओके, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म में भी कंप्लीट कर दिया हमने, एंगल भी फाइंड कर दिया ओमेगा, वो भी हमें फाइंड कर दिया। उसके बाद डिस्टेंस मांगा था, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन b इज इक्वल टू कितना है 4 आ गया। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप राइट